Good morning, students. I hope you all are well. So, student, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 9, Introduction to Computer Network. Okay? So, सर चलिए सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इस चैप्टर के जो कंसेप्ट है उसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है. सो बिफोर दैट डिस्कशन आई एम जस्ट टेलिंग यू अ सिंपल सिचुएशन. लेट आई एम हैविंग 6 कंप्यूटर. ठीक है, they are not connected to each and everyone. Okay, they all are individually independent. ठीक है, computer C1, C2, C3, C4, C5, C6. In an organization, let these 6 computers are there. Now, let computer C1 wants to share data to C6. Okay, now computer C1 wants to share data to C6. Then you know that बच्चों some additional storage device is needed just because of there is no direct interconnection in between them. So obviously computer C1 wants some storage media. Okay, so he can easily be copy the data and share it to C6. Okay, let's suppose frequently these C6 wants to share the data. Then if they do not have any interconnection between them, they all are individual, then they will face some problem like that. First, they always require some additional storage device by which they can share the data. First important thing. Now second important thing बच्चों, let computer C1 wants to give printout of their work. So computer C1 wants a printer. Okay. Let same computer C2 wants to C2 also wants to give their printout of their work. Then C2 is also require a new printer. C3 is also require a printer. Like that, all these 6 computer requires their individual printer if they want to print their whole work. Now second thing. Now third thing. As you know बच्चों कि computer C1 wants to share to data C6, then first he will copy the data. It takes obviously time, and then C6 is again just getting the data in that particular storage device and assessing the data. It also takes a lots of time. So there are 3 aspects which are coming here. सबसे पहला तो one second. In such situation there are 3 problems. Due to that we are just using internet or network. देखो बच्चों, यहां पे सबसे पहली जो प्रॉब्लम आई थी हमारी वो थी सबसे पहले शेयरिंग ऑफ डेटा की. ओके, शेयरिंग ऑफ डेटा की, क्योंकि यहां पे डेटा जब डेटा कंप्यूटर्स इंडिविजुअली थे, देयर इज नो इंटरकनेक्शन बिटवीन देम, तो वहां पे शेयरिंग की प्रॉब्लम रहती है. ठीक है. सेकेंड थी रिसोर्स शेयरिंग की. एज यू नो, वहां पे हमारे हर कंप्यूटर को प्रिंटर जब चाहिए था तो हमने इंडिविजुअल हर कंप्यूटर को एक अलग ही प्रिंटर दिया. ठीक है. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉस्ट. यहां पर बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट रहती है जस्ट बिकॉज ऑफ हर कंप्यूटर को अपना सेपरेट प्रिंटर चाहिए होगा, तो ऑब्वियसली दैट कंप्यूटर के जो पेरिफेरल डिवाइसेस है उनकी नीड भी ज्यादा रहेगी. ठीक है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ, दैट इज नो कम्युनिकेशन. ठीक है. ये 4 प्रॉब्लम थी, बेसिक प्रॉब्लम्स, जो कि तब रहती हैं जब हम कंप्यूटर नेटवर्क फॉलो नहीं करते. अब चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो चारों प्रॉब्लम्स है ये कंप्यूटर नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने से किस तरह से ओवरकम हो जाती है. ओके, तो चलिए देखते हैं. देखिए बच्चों, वही वाली सिचुएशन फिर से बनाते हैं. कंप्यूटर C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6. नाउ कंप्यूटर, अब हम क्या करते हैं, इन सभी कंप्यूटर्स को आपस में एक नेटवर्क की फॉर्म में कनेक्ट कर देते हैं. लेट कंप्यूटर में नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए आई एम यूजिंग अ डिवाइस दैट इज हब. ये देखिए बच्चों, इस तरह से मैंने कंप्यूटर्स को आपस में एक नेटवर्क में कनेक्ट कर दिया. ठीक है. अब नेटवर्क में कनेक्ट करने से सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा वो गौर से देखिए.
देखिए सबसे पहला बेनिफिट यह होगा कि नाउ कंप्यूटर C1 can directly share to data not only to C6 but also to everyone which is connected here. Am I right? In this room, जितने भी number of computers थे, they are now connected within a network. So any computer can send the data to any other computer directly without using any other resources. Am I right? किसी तरह का कोई हार्ड ड्राइव या किसी भी तरह की कोई मेमोरी कार्ड की जरूरत यहां पे अब नहीं पड़ने वाली है. ओके, चलिए ये हमारी पहली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती है. तो सबसे पहला जो एडवांटेज है नेटवर्क का, दैट इज वी कैन शेयर द डेटा इजीली. ओके, वी कैन शेयर द डेटा इजीली. नाउ सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से देखिए बच्चों. सपोज करो these all computer wants to just give print of their data. So I am just here using a best quality of printer. Okay, I am just sharing this printer to all these 6 PCs. So what happened bachcho? Let computer C3 wants to give print to their data. Then through the network, this printer will give the printout to for the C3. Similarly for C5, similarly for C6, similarly for C6 and C1. So कहने का मतलब ये हुआ कि हर कंप्यूटर अपना जो प्रिंट है वो ऑब्वियसली इसी सिंगल प्रिंटर पे दे सकता है. ठीक है, सो वी कैन से दैट कि दिस प्रिंटर दैट इज द रिसोर्सेज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इज शेयर्ड अमंग ऑल कंप्यूटर्स. सो वी कैन से दैट हियर वी कैन शेयर द resources. ठीक है, here we can share the resources. ठीक है. Now third, it reduces the cost. It reduces the cost. Like बच्चों सपोज करो इन प्रीवियस सिचुएशन जब कंप्यूटर में नेटवर्क एस्टेब्लिश नहीं था, वहां पर सपोज करो बच्चों हम लोगों ने 10,000 रुपीज ईच कंप्यूटर को एक एक प्रिंटर सेपरेट दिया. तो सपोज करो 6 कंप्यूटर है तो वहां पे 6 कंप्यूटर मल्टीप्लाई बाय 10,000 ईच, यानी 60,000 रुपीज का प्रिंटर जो है के प्रिंटर्स अटैच करने पड़ेंगे. एम आई राइट? बट रादर देन इफ वी आर यूजिंग अ नेटवर्क, सपोज करो हमने यहां पर बेस्ट क्वालिटी का एक ही प्रिंटर जो कि 20,000 रुपीज का है, ओके, उसी को अगर अटैच कर दिया यहाँ पे विद इन अ नेटवर्क, तो यहाँ पे ये जो प्रिंटर है ये ऑब्वियसली 10,000 रुपीज के कंप्यूटर जो प्रिंटर्स हैं उनसे तो बेस्ट वे में ही वर्क करेगा ऑब्वियसली. ठीक है, और गौर से सोचिए बच्चों, कोई भी रिसोर्सेज है उसका कोई ना कोई मेंटेनेंस तो होता ही है ऑब्वियसली. सो यहाँ पर ओनली 1 प्रिंटर के ही मेंटेनेंस करना पड़ेगा, हमें 6 प्रिंटर्स का मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा. ओके, सो वी कैन से दैट हमारा एक तो 40,000 तो सीधा सीधा बच जाता है और हमें 6 प्रिंटर्स के मेंटेनेंस की बजाय अब ओनली 1 प्रिंटर का ही मेंटेनेंस करवाना है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग नेटवर्क. ओके, नाउ नेक्स्ट, फोर्थ and very important for which network is to be established, that is communication. Communication is the fourth objective due to which we are just using a network. What is communication? Simply just sending and receiving our raw or information. Okay बच्चों, so this is actually the benefit of using network. तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं what is network. चलिए बच्चों सबसे पहले बात करते हैं हम व्हाट इज नेटवर्क. सो सिंपली when 2 or more than 2 objects are connected for a specific purpose, then they
create a network. Okay बच्चों, so simply when two or more than two objects are connected for a specific purpose, then they creates a network. Example जैसे फर्स्ट मोबाइल नेटवर्क, सेकेंड रेलवे का नेटवर्क, थर्ड कंप्यूटर नेटवर्क, एंड फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज इंटरनेट. अब आप बोलोगे सर कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? यस, ऑब्वियसली आप ये कह सकते हो कि इंटरनेट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. ओके, तो चलिए हम हमारी डेफिनेशन को परफॉर्म करते हैं. हमने पढ़ा कि when two and more than two objects are connected for a specific purpose, then they creates a network. एग्जाम्पल में मैंने लिखा है सबसे पहले मोबाइल नेटवर्क. तो गौर से देखिए बच्चों, आपने देखा होगा मोबाइल नेटवर्क के अंदर क्या कनेक्ट होते हैं? सेवरल नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स. एम आई राइट? सो एज आई मेंशन इन दैट डेफिनेशन, व्हाट इज मोबाइल नेटवर्क? Simply mobile network are those network in which more than two mobiles are connected. Okay, so they can communicate to each other. So purpose क्या हुआ? मोबाइल नेटवर्क का पर्पस क्या हुआ? एज आई मेंशन्ड इन दैट डेफिनेशन कि एवरी नेटवर्क इज established for a specific purpose. So like that, like this is mobile 1, mobile 2, mobile 3 and mobile 4. These four mobiles are connected to each other, then they create a mobile network and they are just created for communication purpose. Am I right? Communication. ठीक है. नाउ नेक्स्ट रेलवे के नेटवर्क की बात करते हैं. तो आपने देखा होगा बच्चों, रेलवे के नेटवर्क में कई सारे रेलवे स्टेशन हैं, वो आपस में रेलवे लाइन के थ्रू कनेक्ट होते हैं. एंड व्हाई दे आर कनेक्टेड? फॉर ट्रांसपोर्टेशन. एम आई राइट? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल. ठीक है, एम आई राइट? नाउ अब हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की एंड इंटरनेट. देखिए बच्चों, डोंट जस्ट match these two terms, that computer network and internet, because they both are different thing. आप ये कह सकते हो कि इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की. सपोज करो बच्चों, आई हैव एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर आर 30 नंबर ऑफ कंप्यूटर्स या n नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर हियर and I need to connect them. ठीक है, so I'm just connecting these all computers. ठीक है, I'm just connecting these all computers in a way by which they all are connected, so I can share my data, I can share the resources, I can share everything. ठीक है, to the other PC. So this is called computer network. Okay. If I'm talking about internet, so internet is an example of a network in which most of the and all the computers and other digital devices are connected across the globe. Am I right? चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि what is the difference between computer network and internet. आप ये बोल सकते हो बच्चों, इंटरनेट एक टाइप का कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि ग्लोबली. इंटरनेट क्या है बच्चों? कंप्यूटर और अदर डिजिटल डिवाइसेस का कनेक्शन है जो कि स्प्रेड ओवर टू ग्लोब. पूरे अर्थ पे फैला हुआ कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइस का जो इंटरकनेक्शन है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट. ठीक है, कंप्यूटर्स और अदर डिजिटल डिवाइस का जो आपस में कनेक्शन है जो कि पूरे ग्लोब पर फैला हुआ है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट. जबकि कंप्यूटर नेटवर्क इज सिंगल टर्म विच टेल्स कि वेयर सेवरल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और इन एन स्पेसिफाइड एरिया.
Okay बच्चों, so this is computer network simply. Rest of the thing we will learn in next video. Thank you.